प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु के मीठे और मधुर नाम में आप सबका एक बार फिर से इस चैनल पे स्वागत है। तो आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को देखते हैं। When Christians tell you they have good news, that all who accept Jesus will be saved and will go to heaven, they do not tell you the full truth. In fact, in the Bible, there's more than one verse that actually says that only the chosen tribes of Israel will go to heaven. Revelation chapter 7, verses 1 through 8 states that 12,000 from each of the 12 tribes of Israel, aka Jacob, will go to heaven. Judah, Reuben, Gad, Asher, Naphtali, Manasseh, Simeon, Levi, Issachar, Zebulun, Joseph, and Benjamin. These 12 tribes are who the Jewish people of today trace their ancestry back to, by the way. In fact, Jesus intended to not preach to the Gentiles, i.e., those who are not Jewish. When he started his ministry, supposedly he told his 12 disciples, "Do not go among the Gentiles or enter any town of the Samaritans. Go rather to the lost sheep of Israel." It was only hundreds of years later that Christianity was starting to spread among the Gentiles of Greece, Northern Africa, Asia Minor, which is modern-day Turkey, Rome, and the rest of the Middle East. It is also around this time that the books that make up the New Testament were written, hundreds and hundreds of years later after Jesus' death. Another curious story of Jesus' disregard for the Gentiles comes from Matthew chapter 15, verses 22 to 28. A woman from another tribe called the Canaanites called out to Jesus. She wanted him to heal her daughter who suffered from some sort of ailment. "Lord, Son of David, have mercy on me. My daughter is demon-possessed and suffering terribly." Jesus did not answer a word. So his disciples came to him and urged him, "Send her away, for she keeps crying after us." He answered, "I was sent only to the lost sheep of Israel." The woman came and knelt before him. "Lord, help me," she said. He replied, "It is not right to take the children's bread and toss it to the dogs." "Yes, it is, Lord. Even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table." In the end, the woman was persistent, and Jesus healed her daughter. But this illustrates how little Jesus thought of non-Jews, the Gentiles. It was only when Jesus and his followers were rejected by the larger Jewish community that his message was taken to the Gentiles. The early Christian missionaries used a combination of fraud and poorly written second-hand and third-hand accounts of Jesus' messages to convert Gentiles. That is why the tone of the Gospels and later the other books of the New Testament change in tone to be more favorable to the Gentiles. Christian missionaries and pastors especially need to answer for this discrepancy. How do they reconcile the contradicting intentions? Who is Jesus' message really for? Is it for the Jews or for the Gentiles? I don't think we'll ever get a straight answer out of them for this. All they have for proof is the Bible, which is not enough. तो इस पर्टिकुलर वीडियो में सिस्टर कहती हैं स्टार्टिंग में कि जब क्रिश्चियन लोग आपके पास गुड न्यूज़ लेकर आते हैं तो वो कहते हैं कि जितने भी लोग यीशु मसीह या जीसस को एक्सेप्ट करते हैं वो लोग बच जाते हैं और वो लोग स्वर्ग जाते हैं, लेकिन वो आपको पूरी सच्चाई नहीं बताते। असल में सच्चाई ये है कि वो खुद भी स्वर्ग नहीं जाएंगे, बस इजराइल के 1,44,000 लोग ही स्वर्ग जाएंगे। और अपनी इस बात को सपोर्ट करने के लिए वो प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय उसका 1 से 8 वचन कोट करती हैं। तो सबसे पहले हम इस वर्स के कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं। जब हम ये पूरा बुक उठाकर देखते हैं, रेवलेशन या प्रकाशित वाक्य, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जॉन को परमेश्वर के द्वारा एक विजन, एक दर्शन मिलता है। वो दर्शन जो है वो महाक्लेश काल का दर्शन है, जिस समय परमेश्वर का जो प्रकोप है, उसका जो क्रोध है वो इस दुनिया के लोगों के ऊपर उंडेला जाएगा। उस समय का दर्शन जो है यहाँ पे यूहन्ना को मिलता है। और उसी दर्शन में आगे यूहन्ना यहाँ पर देखते हैं, जो हम 7वें अध्याय में पढ़ते हैं। यहाँ पे इजराइल के 1,44,000 लोगों के माथे पर मोहर लगाई जा रही है। दे आर बीइंग सील्ड।
और इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि वो दे आर बीइंग प्रोटेक्टेड। जो भी ट्रिबुलेशन वहाँ पे चल रहा है उससे दे आर बीइंग प्रोटेक्टेड। यहाँ पे ऐसा कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा है कि केवल वही लोग स्वर्ग जाएंगे, इज़राइल के 1,44,000 लोग स्वर्ग जाएंगे, इज़राइल के 12 गोत्रों के लोग ही स्वर्ग जाएंगे, ऐसा करके यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है। शायद से सिस्टर ने 1 से 8 वचन तो पढ़ लिया, लेकिन 9वां वचन शायद उन्होंने नहीं पढ़ा। मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमेशा आगे भी पढ़ा करें वचन, क्योंकि 9वें वचन में यहाँ पे इस तरीके से लिखा है कि इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। तो अगर ये वचन उन्होंने पढ़ लिया होता तो इतनी कन्फ्यूजन उनको नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि हर एक जाति, यहाँ पे केवल इज़राइलियों के लिए नहीं लिखा कि केवल इज़राइली या फिर यहूदी, यहाँ पे लिखा है हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा, और एक ऐसी बड़ी भीड़ यहाँ पे यूहन्ना ने अपने दर्शन में देखी है, बहुत बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता, जो कि उस सिंहासन के सामने खड़ी हुई है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि स्वर्ग जो है वो केवल 1,44,000 लोग नहीं जाएंगे। जितने भी लोग यीशु मसीह को मानते हैं वो सब लोग जाएंगे, चाहे वो किसी भी जाति किसी भी कुल के हों। वीडियो के सेकंड पार्ट में सिस्टर कहती हैं कि जीसस जो थे केवल इज़राइलियों के लिए आए, पूरी मानव जाति के लिए नहीं आए, जिस प्रकार से मिशनरीज कहते हैं। और अपनी इस बात को सपोर्ट करने के लिए वो कोट करती हैं मत्ती 10 उसका 5 से 6, जहाँ पे इस प्रकार लिखा है, इन 12 को यीशु ने ये आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों की ओर ना जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश ना करना, परंतु इज़राइल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जीसस एक स्पेसिफिक ऑर्डर को फॉलो करते हैं, और उस स्पेसिफिक ऑर्डर को समझने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि जीसस का जो बर्थ था वो इब्राहिम, आइजक और जेकब की लाइनेज से हुआ। इब्राहिम को परमेश्वर ने वादा किया था और यीशु मसीह के बर्थ के बाद वो जो वादा था वो परिपूर्ण हुआ। परमेश्वर ने इब्राहिम से 2 वायदे किए थे। पहला था कि वह उसकी पीढ़ी को आशीषित करेगा, मतलब इज़राइलियों को आशीषित, और दूसरा कि उसकी पीढ़ी के द्वारा सारी जाति के लोग भी आशीष पाएंगे। तो हम देखते हैं कि जीसस की जो मिनिस्ट्री थी वो भी कुछ इसी प्रकार से थी। पहला जो जीसस का मिशन था वो था कि अपने आप को इज़राइलियों के सामने प्रकट करना, और दूसरा जो था वो पूरी मानव जाति के लिए अपने प्राणों को देना। परमेश्वर ने जो उद्धार का मैसेज था वो इज़राइलियों को दिया, और इज़राइलियों को उस मैसेज को सारे नेशंस में फैलाना था, क्योंकि इज़राइल जो है वो चोजन नेशन है परमेश्वर का। तो ये जो वर्स उन्होंने कोट किया मैथ्यू 10:5-6, यहाँ पे केवल हम प्रायोरिटीज़ की बात को देखते हैं। यहाँ पे केवल प्रायोरिटीज़ हैं कि इज़राइलाइट्स प्रायोरिटी थे जीसस की। यहाँ पे इस प्रकार से ऐसा नहीं लिखा, जीसस ने ऐसा नहीं कहा अपने डिसाइपल्स को कि तुम कभी भी मत जाना या फिर कभी वहाँ पर मत जाना, ऐसा कुछ नहीं लिखा। ये केवल उस स्पेसिफिक टाइम की बात हो रही थी। इस वर्स में हम देखते हैं कि इस समय जीसस जो थे अपने डिसाइपल्स की ट्रेनिंग में वो कंसर्न्ड थे, इसलिए उन्होंने उन्हें अन्य जातियों के पास जाने से मना किया था। लेकिन जब हम इसी बुक में, इस मैथ्यू की बुक में, मत्ती में, जब हम 28 अध्याय उसके 19वें वचन में हम देखते हैं, यहाँ पे जीसस अपने डिसाइपल्स को कहते हैं, इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। तो यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ ऐसा लिखा है, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, केवल इज़राइलियों को नहीं लेकिन सब जातियों को। और भी बहुत सारे वचन हैं जब हम पढ़ते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं जॉन 10:16 में हम देखते हैं ऐसा लिखा है कि मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना आवश्य है। तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे केवल ज्यूज लोगों की बात नहीं हो रही, इजराइलियों की बात नहीं हो रही, यहाँ पे लिखा है मेरी और भी भेड़ें हैं, मतलब आउटसाइड इजराइलाइट्स। और जॉन 3:16 में हम पढ़ते हैं क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, केवल इजराइलियों से नहीं, केवल यहूदियों से नहीं, लेकिन जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह पूरी मानव जाति के लिए आए। और बाद में वीडियो में सिस्टर समारिटन वुमन की भी बात बताती हैं। तो अगेन इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे प्रायोरिटीज़ की बात है, जो जीसस उसको आंसर करते हैं, वहाँ पे हम साफ देख सकते हैं कि प्रायोरिटीज़ की बात जीसस वहाँ पे करते हैं। और साथ ही साथ जीसस
उसका परीक्षा भी ले रहे थे, उसका टेस्ट भी ले रहे थे और बाद में उसकी बेटी को वो चंगाई दे देते हैं। तो वीडियो में आगे सिस्टर कहती हैं कि न्यू टेस्टामेंट बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है क्योंकि वो जीसस की डेथ के बहुत सालों बाद लिखा गया था। इस तरीके से वो कहती हैं हंड्रेड्स टू हंड्रेड्स ईयर आफ्टर द डेथ ऑफ जीसस। तो आई गेस शायद वो थोड़ा कंफ्यूज हो गई हैं मैन्यूस्क्रिप्ट्स में और ओरिजिनल राइटिंग में, क्योंकि जब हम गॉस्पल की बात करते हैं तो मैथ्यू, मार्क, ल्यूक, जॉन ने लिखा था जो कि जीसस की डेथ के कुछ ही सालों बाद लिखा गया था और इसके हमको बहुत सारे एविडेंसेस भी मिल जाते हैं। एक टेस्ट है बिब्लियोग्राफिकल टेस्ट। इस टेस्ट के आधार पे किसी भी एंशिएंट बुक की जितनी ज़्यादा मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती हैं और जितनी अर्ली मैन्यूस्क्रिप्ट होती हैं उतना ही बेटर चांस होता है ओरिजिनल को रिकंस्ट्रक्ट करने का। तो जब हम न्यू टेस्टामेंट की बात करते हैं तो न्यू टेस्टामेंट की ग्रीक मैन्यूस्क्रिप्ट्स अराउंड 5800 हैं, लैटिन मैन्यूस्क्रिप्ट 10,000 हैं और दूसरी अर्ली वर्जन्स जो हैं वो अराउंड 9,300 हैं। तो पूरी न्यू टेस्टामेंट की मैन्यूस्क्रिप्ट्स अराउंड हमारे पास अभी 24,000 हैं और किसी भी एक भी एंशिएंट बुक की इतनी सारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स नहीं है जितनी कि हमारी न्यू टेस्टामेंट की हैं। और अगर अर्ली मैन्यूस्क्रिप्ट की बात करें तो न्यू टेस्टामेंट की हम देखते हैं कि अर्लीस्ट मैन्यूस्क्रिप्ट 120 AD की है जो कि ओरिजिनल से केवल 40 ईयर्स के गैप पे है। तो हम देखते हैं कि एंटायर न्यू टेस्टामेंट जो थी वो AD 35 और AD 100 के बीच में ही लिखी गई थी। और इसके अलावा हम देखते हैं कि 19,368 बार चर्च फादर्स ने न्यू टेस्टामेंट को साइट किया है लेट 1st सेंचुरी में। तो हम देखते हैं कि जो न्यू टेस्टामेंट है या फिर जो चारों गॉस्पल है वो बिल्कुल रिलायबल है क्योंकि अपोस्टल्स जिन्होंने उसको लिखा था वो आई विटनेसेस थे और वो अपने फेथ के लिए, अपने ट्रूथ के लिए वो मरने को भी तैयार थे। जब हम देखते हैं हिस्ट्री में तो हम देखते हैं कि बहुत गंदी तरीके से सारे जीसस के डिसाइपल्स की मौत हुई है, तो वो अपने फेथ के लिए मरने को भी तैयार थे। तो हम देखते हैं यहाँ से कि न्यू टेस्टामेंट बिल्कुल रिलायबल है। जितने भी लोग इस तरीके की वीडियोस बनाते हैं मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ अच्छे से बाइबल को पढ़िए, कोई सी भी वर्स निकाल के मन गढ़ंत बातें मत बनाइए। थैंक यू। तो हम आपसे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।